Hello, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning biology here. So, our today's topic is respiration. So, we are going to take an idea about the respiration and we will learn about the respiration in plant. Okay. So this topic is from the first chapter of biology class 10th and the chapter is life process. So in life process we have discussed about the digestion and digestive system of the human being, but today we are going to learn about the respiration. Okay, so let us start this topic and we will learn a lot in this topic today. सो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या लर्न करना है रेस्पिरेशन के बारे में. रेस्पिरेशन क्या होता है? So respiration, that is very important part of our life. But before learning about the respiration, I'm going to tell you something about the assimilation of food. What happened when the food assimilated in our body? So basically, the assimilated food is used mainly for two purposes. And what is that purpose? So I'm going to discuss about that purpose. क्या purpose है? क्या होता है food का जो assimilated होता है हमारे body में? तो हम उसके बारे में अभी जानेंगे. ओके, सो द फर्स्ट इज यूज एज फ्यूल टू गेट एनर्जी. फ्यूल की तरह यूज होता है. सपोज फ्यूल यूज होता है हमारा खाना बनाने में, कुकिंग के लिए फ्यूल यूज होता है, या फिर फ्यूल का यूज करके बहुत सारा पर्पस सॉल्व होता है. सेम वैसे ही जो हमारा फूड आइटम है जो एसिमिलेटेड होता है हमारी बॉडी में, वो क्या, उसका क्या होता है? दैट एसिमिलेटेड फूड आर यूज एज अ फ्यूल. एंड उस फ्यूल से हमें क्या मिलता है? उस फ्यूल से हमें एनर्जी मिलता है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड फ्यूल. एंड एनर्जी, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी? एनर्जी क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए? तो अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. वी can't be able to perform any work. So that's why energy is very important for our body. So the first thing which we get from the assimilated food, that is are used as a fuel to get energy. Okay, the second important thing, that is the material for the growth and repair of the body. So basically that assimilated food help in the growth and development ऑफ आवर बॉडी. दैट मीन्स जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन एंड अपनी हाइट बढ़ना, अपना वेट बढ़ना, या फिर अपना जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में होता है उसके अगेंस्ट हम फाइट करना, या फिर कोई कट हो गया उस कट को फील करना, उस घाव को भरना. सो दैट थिंग्स is helped by that assimilated food. Okay, so now we are moving forward and we are going to see the definition of respiration. So what is the definition of respiration? So basically the process of releasing energy from food is called respiration. Simply, respiration is the process of releasing energy from the food. हमें रेस्पिरेशन में क्या मिलता है? जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड का यूटिलाइज होता है अपने बॉडी में, सिमुलेटेड होता है. उसके बाद उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है. एनर्जी कैसे रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने बॉडी में, उस ऑक्सीजन के थ्रू हमें एनर्जी, वो फूड कंबाइन होता है उस ऑक्सीजन से, कंबाइन होके हमें हमें एनर्जी मिलती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? वो रिलीज होता है, जो हम एक्सेल करते हैं वो रिलीज होता है एटमोस्फेयर में. एंड वाटर, वाटर किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है. ओके, सो हियर वी कैन सी दिस इक्वेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन, food combined with oxygen, it form energy plus carbon dioxide gas which we exhale during the respiration, and water in the form of water vapor. Okay, so these are the things which we get during the respiration. So now we are moving forward and we are going to see a very amazing thing, and that is about the cellular respiration. What is cellular respiration? क्या है cellular respiration? अभी हम उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का. क्या हम किसे कहते हैं उसके बारे में आइडिया लेंगे. सो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन विच टेक प्लेस इन आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल.
to convert biochemical energy obtained from the food into the chemical compound called adenosine triphosphate, that is ATP. In short form we call it ATP. तो वो जो फूड होता है किसके फॉर्म में अपने बॉडी में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में फूड के थ्रू, रिस्पिरेशन के थ्रू ऑब्टेंड होता है, ठीक है। ATP chemical compound called adenosine triphosphate, ATP. Okay, so the energy produced during the respiration is stored in the form of ATP. In this form energy is stored in our body, and this is also a form of energy, that is ADP, that means adenosine diphosphate. ATP is triphosphate and ADP is adenosine diphosphate. And the third thing is inorganic phosphate, which is the combination of oxygen and phosphorus. किसका combination है? ऑक्सीजन एंड फास्फोरस का। एटीपी क्या होता है? एटीपी में बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है, दैट मींस हाई एनर्जी कंटेंट होता है। बट एटीपी में एनर्जी का कंटेंट कितना होता है? लो होता है। लो होता है किसके कंपैरिजन में? एटीपी के कंपैरिजन में। और क्या होता है, हमें एटीपी कैसे मिलता है? सो बेसिकली व्हेन एडीपी कंबाइन विथ फॉस्फेट प्लस एनर्जी इट फॉर्म एटीपी। ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं, जहाँ की एडीपी क्या है? लो कंटेंट है एनर्जी का। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू see some more concept related to that. And yes, we are going to see the types of respiration, how many type of respiration is over there. So basically before that we are going to see some important concept here. Okay, so let me change the color. So when the cell need energy, ATP can be broken down using water to release energy. जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी जो कि एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में, वो स्टोर्ड एनर्जी ब्रेक होता है किसके प्रेजेंस में? किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। वो एटीपी ब्रेक होके और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है जब वो एटीपी ब्रेक होता है, वो हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ओके, सो कैसे ब्रेक होता है? वी आर गोइंग टू सी दैट प्रोसेस हियर। सो फर्स्ट we have ATP, that is a stored energy. That stored energy break in the presence of water and form ADP, that means low content of energy, then phosphate plus energy. And how much energy we can get when ATP broke? Again, when ATP broke, we can get 30.5 kg per mole energy. So that energy we can get when the ATP broke. Okay, so now we are going to learn the types of respiration. So there are two types of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. So we are going to see what is the meaning of aerobic and what is the meaning of anaerobic. ठीक है, अभी हम meaning देखेंगे क्या होता है। Aerobic that means present of air, means कि air के साथ, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो रिस्पायरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? पायरुविक एसिड है, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्सन किसमें होता है? पायरुवेट में। किसमें? साइटोप्लाज्म, अपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है उसका, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वो पायरुवेट, दैट मीन्स की 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. Here we can see 1 molecule of glucose is used and 2 molecule of pyruvic acid form. उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉर्बसाइटस, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, that is 6. Okay, and 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है, इतना एनर्जी रिलीज होता है
एक ग्लूकोज के जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है एक ग्लूकोज यूज होने के बाद. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट द anaerobic respiration. So by name we can guess about that type of respiration. So let me change the slide first and then we will discuss about that. एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रिस्पिरेशन नेम से हम जानते हैं एरोबिक दैट मींस प्रेजेंस ऑफ एयर. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन? एयर प्रेजेंट नहीं होता, दैट मींस absence of air we can say, or without air. So when there is process of respiration in which air is not involved and that happens, that take place in absence of air, उसको क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं. ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें एयर नहीं होता, एयर के प्रेजेंट में नहीं होता, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और ऐसा रेस्पिरेशन किसमें होता है? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें होता है? वो होता है ईस्ट में और बैक्टीरिया. ठीक है, जो ईस्ट होता है एंड बैक्टीरिया होता है वो एनर्जी किससे, किस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से. ठीक है, और वो कैसे होता है? फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, बट पहले हम देखते हैं कि ईस्ट में या बैक्टीरिया में कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ग्लूकोज, यहाँ भी वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ? अगेन साइटोप्लाज्म में ही होता है. और फिर फॉर्म होता है पायरुवेट, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में क्या होता है? फॉर्मेंटेशन होता है. ऑक्सीजन के एब्सेंस में फॉर्मेंटेशन होता है. फॉर्मेंटेशन होने के बाद इथेनॉल बनता है, दैट इज C2H5OH, द 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल फॉर्म ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और 2 ATP किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है ईस्ट एंड बैक्टीरिया में. बट यू नो व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू नो. बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना जरूरी है. एंड क्या है वो? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है. कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो एनर्जी है, वो जल्दी जल्दी से यूज होने लगता है. फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमें एनर्जी की जरूरत होती है उस टाइम पे, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी यूज होता है, एनर्जी की जरूरत होती है. तो उस टाइम पे क्या होता है? अपने मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. वो कैसे होता है? प्रोसेस अभी हम देखते हैं. जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर से साइटोप्लाज्म में होता है. अगेन ये पायरुवेट, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ नहीं प्रेजेंट है. और ये कौन करता है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता है, ये कौन करता है? मसल टिश्यू, हमारा जो मसल टिश्यू है वो इन्वॉल्व होता है इसमें और बनाता है लैक्टिक एसिड. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता था? लैक्टिक एसिड नहीं बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था, ऑक्सीजन एंड वाटर, एनर्जी एंड वाटर वेपर होता था. बट यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी हमारे बॉडी को सप्लाई होने लगता है. जस्ट बिकॉज यहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो कभी कभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने के बाद अपने मसल्स में पेन होता है, मसल क्रैम्प होता है, या फिर पेन होती है काफी जगहों पे. क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल क्रैम्प होता है. ओके, so now we are moving forward and we are going to see the respiration in the प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे. तो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एनिमल में सिर्फ एक ऑर्गन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, लंग्स होता है इन्वॉल्व. बट प्लांट में एक ही पार्ट, सॉरी ऑर्गन एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता है. बट प्लांट्स में क्या होता है? रूट भी इन्वॉल्व होता है, स्टेम भी इन्वॉल्व होता है. रूट में अलग रेस्पिरेशन होता है, स्टेम में अलग होता है, लिव्स में अलग 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 रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, इंडिविजुअली हर जगह पे रेस्पिरेशन होता है. तो कैसे होता है हर जगह अभी हम देखेंगे. रूट में कैसे होता है, फिर देखेंगे स्टेम में, फिर देखेंगे लिप्स में कैसे होता है. रूट में कहाँ से उन्हें ऑक्सीजन मिलता है?
तो जो रूट हेयर होता है सॉइल के नीचे होता है, रूट सॉइल के नीचे होता है, और स्मॉल स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं। तो जो सॉइल में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसे absorb करते हैं और उसको उसके थ्रू ऑक्सीजन गेन करते हैं। ओके, सो बेसिकली रूट ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion. Diffusion that means ऊपर नीचे से लेके उसको सेल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेल को सप्लाई करता है, और फिर क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन स्टेम में कैसे होता है। तो स्टेम में जो प्लांट्स होते हैं, जो बेसिकली हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेम जो उनका होता है उस स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, मतलब डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन गैस किसके थ्रू, एस्टोमेटा के थ्रू होता है। बट ये होता है जो सॉफ्ट स्टेम है, जिन प्लांट्स के सॉफ्ट स्टेम है। बट कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जिनके बहुत वुडी स्टेम होते हैं या हार्ड स्टेम होते हैं, तो उस केस में बड़े प्लांट्स में, दैट मीन्स ट्रीज में, डू नॉट हैव स्टोमेटा इन दैट केस, सो द बार्क हैज लेंटिकल्स। और फॉर द गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, जो उनका बार्क होता है, दैट मीन्स वो वुडी स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का हम देखते होंगे उनके स्टेम में होता है ट्री के, तो उस बार्क में टेंटिकल्स प्रेजेंट, सॉरी लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो लेंटिकल्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और वहीं से ऑक्सीजन गैस रिलीज भी होता है, दैट मीन्स डिफ्यूज भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है लेंटिकल्स से। So we are moving forward and we are going to see the respiration in leaf. Leaf में कैसे respiration होता है? So let me change the slide here. So basically, the exchange of respiratory gas in the leaves take place by the diffusion through stomata. In case of leaf, also gases diffusion take place through the stomata. Stomata से exchange होता है गैस का, that means का ऑक्सीजन इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। लेकिन ये कैसे, तो दिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीफ में, वो कब होता है, दिन के समय में होता है, मीन्स के डे टाइम में होता है। बट जो रेस्पिरेशन होता है वो डे नाइट दोनों टाइम पे होते रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो रात में भी नहीं रुकता है। तो रात में वो, दिन में, तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, द नेट गैसेस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज एज फॉलोज। कैसे होते हैं, सो फर्स्ट तो हम डे के टाइम में देखने जाते हैं कि जा रहे हैं कैसे होता है। सो इन डे के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम when photosynthesis occur oxygen is produced, photosynthesis के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, उस ऑक्सीजन में से कुछ कुछ ऑक्सीजन लिप्स क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेशन के लिए रख देते हैं और बाकी ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। that means oxygen for the respiration and rest oxygen diffuses out into एयर, दैट मीन्स एटमोस्फेयर में डिफ्यूज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो दिन के टाइम में क्या होता है, ओटी डिफ्यूजेज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन, कार्बन एटमोस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वो डिफ्यूज आउट कर देते हैं। बट रात के टाइम में कैसे होता है, तो रात के टाइम में तो प्लांट्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं और एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। दैट मीन्स देर रात के टाइम में oxygen diffuses into leaf from the air and carbon dioxide diffuses out by the stomata. Okay, so that happened. इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे बैठना खतरनाक हो सकता है। क्यों डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, ऑलरेडी अपने एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऊपर से प्लांट्स भी रिलीज कर रहे हैं,
तो वो अपने लिए डेंजरस हो सकता है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से हमें क्या हो सकता है, हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। इसलिए रात के टाइम में, नाइट टाइम में ट्री के नीचे बैठने के लिए लोग अवॉइड करने बोलता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये काफी है। आज हमने रेस्पिरेशन देखा क्या होता है, हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखा, हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट देखा। ठीक है, so in next session we are going to learn about the respiration in animals और human being। कैसे होता है respiration, क्या प्रोसेस होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। So this is all for today. I hope you have enjoyed the session. So bye everyone, take care, keep learning and keep smiling. Good night.